جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم وقت ہمارے مرکز پہ آیا ہے، اور ہم جن جگہوں سے ہمارے پاس مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے پہلے دن سے ہم ایک وعدے اور معاہدے کے ساتھ بندھے تھے، اور اس میں سب سے اہم نقطہ ہم دونوں کے درمیان مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر وہ یہ تھا کہ مردم شماری جو خاص طور پہ سندھ اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں کی، اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور اس حوالے سے جو قانونی کارروائی مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں جا کر ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اعلان کیا تھا، اظہار کیا تھا، اسے پی ٹی آئی میں متفق کیا، اور گزشتہ دنوں کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ مردم شماری کے جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو اپروول کے لیے اس فورم میں بھیج دیا جائے جس کو دراصل اس کو منظور کرنا ہے، یعنی سی سی آئی، اور اس کے بعد ہمارے درمیان یہ بھی طے ہوا کہ جس طرح پچھلی مردم شماری کم سے کم 6-7 سال تاخیر سے ہوئی، تو اس دفعہ اس تاخیر کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے سوالیہ نشان، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی مردم شماری کے حوالے سے بہت سارے تحفظات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس کابینہ کے اجلاس میں کہ ہم ارلی سینسس کروا دیں اور اگلا الیکشن، عام انتخابات اس نئی مردم شماری کی بنیاد پر کرایا جائے۔ آج ہم نے یہاں بیٹھ کر اس کی جزیات کا جائزہ لیا ہے اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ممکن بنانے کے لیے مکمل طور پر تعاون کریں گے، اور حکومت اس پر تیزی سے کام کرے گی، اور جس میں کہ بہت سارے مرحلے ہیں، بجٹ میں پیسہ رکھنا ہے، اس کی فنڈنگ کرنی ہے، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو کچھ انسٹرکشنز جانی ہے۔ تو آج اہم فیصلہ اس حوالے سے یہی ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی مختلف اور ایشوز بھی جو ہمارے درمیان تھے اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم کامیابی جو کہ پچھلی کابینہ میں بھی ہوئی ہے اس کی تجدید کی ہے ہم نے کہ اس کو کس طرح ممکن بنایا جائے اور کس طرح اس کی جزیات پر عمل کیا جائے۔ جیسے خالد بھائی بتا رہے تھے، تھوڑی سی میں تفصیل کے اندر جاؤں گا کہ یہ جو پچھلا مردم شماری جو کی گئی اس میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، اب ہم آگے کیا کرنے کی کا فیصلہ کیا گیا کابینہ کے اندر۔ تو پہلی بات تو میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری ہوئی یہ اس حکومت کی، یعنی کہ جو مخلوط حکومت ہے اس وقت جس کا تحریک انصاف بھی حصہ ہے، ایم کیو ایم بھی حصہ ہے، یہ ہماری حکومت کی کرائی گئی مردم شماری نہیں ہے، یہ مردم شماری جو ہے وہ پچھلی حکومت نے کروائی، اور اس کے بعد مردم شماری کے جب نتائج آئے تو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کراچی میں بھی کیا گیا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کیا گیا۔ بلوچستان سے آوازیں اٹھیں، خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھیں، خاص طور پہ جو ضم اضلاع ہیں ان کی طرف سے شکایت آئی، لیکن کوئی واضح فیصلہ سازی نہیں کی گئی۔ آپ حکومتی اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت کی کابینہ کے فیصلے دیکھیں، اس وقت کی مشترکہ مفادات کی کونسل کے فیصلے دیکھیں، تو وہ بال ادھر سے ادھر گھماتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب کیونکہ الیکشن قریب آ گیا تو فی الحال تو جو ہے یہ حتمی ابھی ہم اس کو نہیں قرار دیتے، لیکن الیکشن اسی میں قرار دیا۔
दूसरी चीज़ जो याद दहानी में कराना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वो सियासी पार्टियाँ जो आजकल कराची में इस मौजू के ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पहला सेंसस है, ये पहली मर्दमशुमारी है कि जिसके नताइज को वो कबूल नहीं करते? ये तो मुतवातिर होता रहा है। कराची जब हम बच्चे थे, जब से बड़े हुए शहर के अंदर, तो हम यही बात सुनते, कहते और देखते आए हैं कि जो कराची की अददी तादाद है, जो कराची के जितने शहरी हैं, वो सेंसस के अंदर मर्दमशुमारी के अंदर कराची वालों के मुताबिक जायज़ तरीके से नज़र नहीं आ रहे। जो अब ये हुकूमत करने जा रही है, जिसके खिलाफ की गुजारिश करते हैं, बाकी ये खास तौर पे मैं जमात इस्लामी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंसाफ तो अलग अलग शहर में अलग नहीं होता ना। तो सराजुल हक साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा पेशावर में भी एक जुलूस निकालें या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, जिसके अंदर वो कराची की गलत जो मर्दमशुमारी है उसका जिक्र ज़रूर करें, क्योंकि उनकी सियासत मुझे लगता है कि एक शहर में कुछ और नारा होता है, दूसरे शहर में कुछ और होता है। लेकिन चलें, उनकी बात छोड़ते हैं। हम तो उस मसले को आज का नहीं, जो देरीना मसला है, जिसका सबसे रिसेंट, सबसे जो मादी करीब के अंदर जाओ जो किया गया, वो भी पिछली हुकूमत ने किया, हम उसको हल करना चाहते हैं। उसके लिए काबीना ने ये फैसले के अंदर भी लिखा है कि बेहतर निज़ाम को देखा जाए। उसकी जो काबीना की कमेटी थी जिसने ये सिफारिशात पेश की थी, उसके अंदर अमीरुल्लाह भाई उसके अंदर शामिल थे, लेकिन जो आगे की सिफारिशात हैं कि बेहतर निज़ाम किस तरह किया जाए, तो उसकी जो काबीना की कमेटी बनी है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो अमीर भाई के पास है। इनको क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग डिवीजन के नीचे आता है, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो मैंने एक टेक्निकल टीम जो है वो ऑलरेडी नोटिफाई कर दी है, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और कोशिश ये है कि इस दफ़ा एक ऐसा निज़ाम दुनिया में जो बेहतरीन तरीक़ेकार हैं मर्दमशुमारी करने के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शफाफ बना के एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को उस पर एतमाद हो। जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए। वो मुकम्मल करने के बाद हम उसको पार्लियामान में ले जाने से पहले सिविल सोसाइटी के पास भी लेके जाएंगे। हम जो रिसर्च के इदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जाके उनसे भी मुशावरत करेंगे, ताकि एक ऐसा निज़ाम आए जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो। जैसे ही वो निज़ाम अमीन भाई की जो कमेटी जिसको चेयर कर रहे हैं काबीना की, वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी, काबीना में लेकर आएगी, उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जो सिफारिश होगी वो यही होगी कि जल्द अज जल्द दोबारा सेंसस कराया जाए, क्योंकि एक ऐसा सेंसस जिसके ऊपर मुल्क के बेशतर इलाकों में एतमाद नहीं है, बजाय कि हम उसको 10 साल तक चलाते रहें, हम जल्द अज जल्द एक बेहतर निज़ाम के साथ, एक ऐसे निज़ाम के साथ जो शफाफ हो, जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो, एक सेंसस कराया जाए, और जो फिर उससे फैसला साजी होनी है, जो वसाइल की तकसीम है, जो इलेक्शन के अंदर नुमाइंदगी है, वो उस बेहतर निज़ाम की बुनियाद के ऊपर जी। असद उमर साहब सवाल हो जाए, गवर्नर साहब बात करेंगे। अच्छा सर, ये आज एमपीएल की दावत पर हम यहाँ पर आए थे, और ज़ाहिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू सेंसस ही था, और इसके अंदर जो इल्ज़ाम थे वो दूर कर दिए गए हैं। और इसके लिए इस सेंसस को कराने के लिए जब भी ये तैयार होगी, अमीन भाई की टीम इन्होंने जब किया था तो उन्होंने आपको बताया, जब भी ये तैयार होंगे वो बात इस पर पूरी तरह तैयार है कि जैसे ही ये सारी टेक्निकल चीज़ें पूरी कर ली जाती हैं, तो इसके अंदर जो भी लवाजमात दरकार हैं, चाहे वो पैसे से हैं, चाहे वो टीमों से हैं, चाहे वो टीमें जो सेंसस करने वाली हैं, नागरा की सपोर्ट है, जो कुछ भी इसके अंदर दरकार होगा वो बात उसको ज़ाहिर है पूरा करने की जिम्मेदारी रखती भी है और लेती भी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जिस सेंसस पे लोगों को तकलीफ थी या जिस सेंसस पे लोगों को मुकम्मल एतमाद नहीं था, वो सेंसस के लिए आज मुहर्रिकात तय कर लिए गए हैं। ये पहले भी जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जो पुराने उसके ऊपर जा रहे हैं और 10 साल के लिए सेंसस नहीं होगा, वो गलत न्यूज़ थी। ऐसी कोई चीज़ तय नहीं हुई थी, मिस कम्युनिकेशन थी, उसको आज हमने बिल्कुल बैठ के एक चीज़ को
देख के उसको टेक्निकली हर चीज़ को करेक्ट कर लिया है और इंशाल्लाह सेंसस अपने वक्त पर ही होंगे। जैसे ही अमीर भाई चेयर कर रहे हैं इस कमेटी को, वो कमेटी अपनी सिफारिशात रखती है, इसको फौरी तौर से आगे बढ़ा दिया जाए। बहुत सर ये बताइएगा, आपसे मेरा सवाल है कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा कि पहले तो दो कराची और हैदराबाद के मुतालिक या शहरों के मुतालिक वही मुमकिन नहीं हो सका अभी तक, तो कैसे मुमकिन होगा? दूसरा ये है कि जब कप्तान की हुकूमत आई थी तो लोग समझ रहे थे जहाज उड़ाने वालों की हुकूमत आ गई है, ये तरक्की करेगी, रेलवे तरक्की करेगी, स्टील मिल चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो पहले तो पायलट से रुके गए थे, अब जहाज रुके जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? सर, पहली बात तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क का निज़ाम आपका ऐसा बिगड़ा हुआ है कि डॉक्टर भी जाली डिग्री वाले फिर रहे हैं और जहाज उड़ाने वाले जिनके हाथ में लोगों की ज़िंदगी है वो भी जाली डिग्री वाले फिर रहे हैं, तो उस गलत निज़ाम को दुरुस्त करना, तो ये तो अच्छाई की सिम की तरफ हम जाते हैं, ये बुराई तो नहीं है। दूसरे जिस तरीके से आपने बात की रेलवे के निज़ाम की, आपको पता है MI1 का मनसूबा जो है वो उसकी अप्रूवल दे दी गई है, उसकी इस वक्त फाइनेंसिंग के ऊपर बातचीत चल रही है और पिछले 70-72 साल से पाकिस्तान में रेलवेज़ को बेहतर करने के लिए जितनी सरमायाकारी की गई है, सिर्फ ये एक मनसूबा उससे ज़्यादा सरमायाकारी करने जा रहा है। कराची में कोई जदीद ट्रैफिक का निज़ाम नहीं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं, ग्रीन लाइन का मनसूबा जो है वो आखिरी मराइल में पहुँच रहा है। इंशाअल्लाह ताला जुलाई-अगस्त के महीने के अंदर हम सब उस ग्रीन लाइन के बस के अंदर भी जाएंगे। KCR कराची सर्कुलर रेलवे जो आज से कम 20-25 साल से तो सुनता रहा हूँ, वो इंशाअल्लाह ताला अपनी तागीर की तरफ जा रहा है। तो मनसूबाबंदी तो हो रही है। फायर टेंडर 1.5 अरब रुपए के फायर टेंडर, मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फायर टेंडर कराची में पहुँचा दिए गए हैं। और आपने आखिरी चीज़ें और चीज़ पूछी कि तो ये था स्टील मिल के ऊपर जो है आपने देखा है कि इस वक्त जो आज भी अखबार के अंदर आया हुआ है, पूरी उनकी काबीना ने अप्रूवल कमेटी जो है उसने अप्रूवल दे दी थी। इंटरनेशनल बिडर्स आ रहे हैं और वो मिल जो बंद हमें मिली थी, चलती भी नहीं मिली थी, बंद मिली थी, वो इंशाल्लाह चलने की तरफ। अच्छा, ये बता दीजिएगा, PTI और MQM दोनों का सवाल है कि MQM और PTI का जो मुआहिदा हुआ था उससे MQM कितनी मुतमईन है, और आप लोग ये बता दीजिएगा कि MQM से बात की गई थी एक और वजारत देंगे, मुशीर बनाएंगे, उस हवाले से क्या और MQM के तफादल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला नुकता था सेंसस का, जो कि किसी तरह भी सियासी और तंजीमी नुकता नहीं था, उससे बड़ी अहम कामयाबी और पेशरफ्त। बाकी चीज़ों के बारे में अब तक तो हम ये कहते रहते हैं कि वादों में एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़मीन पे भी होते की नज़र आएगी बहुत सारी चीज़ें। और हम तो उम्मीद के साथ स्कूल में भी आए थे और उम्मीद के साथ अभी हमें लगता है कि इससे मज़ीद कामयाबी। जवाब आप लोग बता दीजिए, वजारत और सर एक मिनट जवाब देने दे सर। PTI मैं पहले इधर से लेकर रहा हूँ। देखिए आप उम्मीदवार देखिए MQM हमारी इत्तेहादी है और MQM के इस वक्त 2 वज़ीर पार्टी काबीना में मौजूद है और इंशाअल्लाह जैसे ही वज़ीर आज़म मुख्य करते हैं तो एक और या 3 वज़ीर आज़म साहब चाहे वज़ीर वज़ारत दे सकते हैं, जिसको चाहे अपनी ज़रूरत के तहत ही वज़ारत दी जाती है, ये कोई सियासी रिश्वत की तहत नहीं दी जाती। तो लिहाजा जैसे ही वज़ीर आज़म महसूस करेंगे कि उन्हें एक और वज़ीर की ज़रूरत है, उन्हें MQM से समझ आता है, उन्हें PTA से समझ आता है, उन्हें और किसी जमात से समझ आता है, जहाँ से वो देना होगा फुल इख्तियार वज़ीर आज़म का है। हमारे ऊपर कोई MQM का प्रेशर ऐसा नहीं है कि वो वज़ारत के लिए हमारे लिए रोज़ माध्यम से हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे वज़ीर आज़म ज़रूरत महसूस करेंगे तो चलेंगे। ये वाइट पेन से छेड़ लो भाई, वाइट पेन से ठीक है। मैं आपको ओवरऑल उसका बता दूं कि ये ब्रॉडशीट की जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, तो वज़ीर आज़म से भी मुशावरत की थी, उनके साथ उनसे भी पूछा था और मेरी शहजाद अकबर से काफ़ी तफसीली बात हुई है। आपको इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन जो है ना
वाज़े फैसले होते हुए नजर आएंगे। बुनियादी उसूल जो है तहरीक इंसाफ का बड़ा सादा है। ये वज़ीर आज़म का मेरे ख्याल में कौम के साथ सबसे बड़ा वादा है कि जो मुल्क की दौलत लूटी गई है उसको रिकवर करना है, और इंशाअल्लाह ताला जो आप फैसले होते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में वो आप उसी के मुताबिक शुमारी के हवाले से एमकेएम ने काफ़ी शोर मचाया, और हमेशा से स्ट्रैटेजी हमने देखी कि जो ज़्यादा शोर मचाए उसको मॉनिटर बना दो, कमेटी बना के एमकेएम को भी इसकी चेयरमैनशिप दे दी जाती है। अगर इसमें अब मजीद इल्तवा होता है तो इसका मतलब एमकेएम पे सारे, यानी कि अब बॉल जो है वो एमकेएम के कोर्ट में है अगर इसमें देर होती है। दूसरा सवाल ये कि और जमातें भी मर्दमशुमारी को लेकर कल कराची में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस पर खालिद भाई आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में इतना तो कर लें, वो ये भी ना करें तो और क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि मर्दमशुमारी के हवाले से तो सबसे बड़ा जो मसला खड़ा हुआ था वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में 70s के दौर में था। तो हम तो नहीं दे सकते में जमात इस्लामी मौजूद थी, कोई एक धरना, कोई एक नारा, कोई असेंबली में खड़े होकर एक बात की नहीं। और इसके अलावा फिर ज़ियाउल साहब के दौर में भी कराची की मर्दमशुमारी में बहुत बड़ी डंडी मारी गई थी। हम तो नहीं थे, जो उस वक्त की यहाँ की क़यादत थी सिंधी शहरी इलाकों की, उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद की थी उसमें। और फिर जो जरदारी साहब ने ये देख कर कि हाउस काउंटिंग में कराची की आबादी 2,45,00,000 आ रही है, तो उन्होंने उसको डिले करवाया, मुजरिमाना तौर पे डिले करवा दिया। तो वो भी एमकेएम के बहुत सारे ठेकेदार और जिम्मेदार जो उस वक्त थे वो आज इस हवाले से मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरा तो करने दीजिए ना। आप एक साहब हैं जो मुजाहरे की जिन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने 2018 में हमें देखकर सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे पिटीशन दाखिल करने, फिर उनको चैम्बर में बुला लिया गया, शटअप कॉल दी गई थी, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली। जिन्होंने इस मुकदमे को वापस ले लिया अदालतों से, वो सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? आप तो इस मुकदमे से विड्रॉ कर दें अपने आप को, लेकिन करने दीजिए। अगर ये भी ना करें तो बताइए वो और क्या करें। और दूसरा सवाल जो था, दूसरा सवाल कि अब अगर देर होती है मर्दमशुमारी, नई मर्दमशुमारी के हवाले से, तो क्या सारा जो डिस्क्रेडिट है वो एमकेएम को जाएगा? देखिए ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो हुकूमती काम होता है उसके अंदर पीटीआई और एमकेएम अलग अलग नहीं है, इंजीनियर अलग अलग नहीं है, वो पूरी काबीना की जिम्मेदारी होती है। अगर अच्छा काम होगा तो उसका जो क्रेडिट है वो तमाम वो पार्टीज जो इस मखलूक हुकूमत का हिस्सा है उनको मिलेगा, और अगर कोई कमजोरी रह जाएगी, कमी रह जाएगी, तो उसकी भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है। तो ये पीटीआई बमुकाबला एमकेएम नहीं है। अच्छा, ले लें कि ये सेंसस जो हुए थे फौज की निगरानी में हुए थे, जिससे आप मुतमिन नहीं है, तो अब के जो सेंसस होंगे किसकी निगरानी में होने चाहिए और इसका जिम्मेवार? सर इसीलिए तो मैं बोलूँ ना कि देखिए तरीक़ेकार दुनिया में, सारी दुनिया में सेंसस होता है और वो कबूल भी किया जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ खास है पाकिस्तान में जिसकी वजह से बार बार ये इशू रेज किया जाता है? इसीलिए हमने ये कहा कि एक बाकायदा टेक्निकल कमेटी पहले बनाई है। वो टेक्निकल कमेटी सारी दुनिया में जो निज़ाम है सेंसस किस तरीके से किया जाता है उसको स्टडी करके वो अपनी सिफारिशात रख देगी। एक काबीना की जो कमेटी बनी है, उस काबीना की कमेटी ने फिर अपनी सिफारिशात काबीना के सामने रखी, और मैं फिर वही दोहराऊंगा, हमने इस दफा सिर्फ ये हुकूमत के अंदर बंद कमरे में नहीं करना, हमने, क्योंकि इसमें हर पाकिस्तानी का हक है कि उसकी नुमाइंदगी जो है वो सही तरीके से नजर आए, चाहे वो मसाइल हैं या असेंबली है। तो इसलिए हमने पूरी सिविल सोसाइटी से भी इनपुट लेनी है, और जब वो एक ऐसा निज़ाम बनेगा जिसमें सबको एतमाद है, तो उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएंगे उस पर भी लोगों को दोनों जमातें इत्तेहादी हैं और करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी पर बड़ा इल्ज़ाम लगाती है, तो यकीनन ज़िमनी इंतखाबात सकते हैं, सभी इंतखाबात सकते हैं, मुलाकात की उस पर भी बातचीत हुई, कौन इसका साथ दे रहा है शहीद में भी और ज़िमनी इंतखाबात में भी, और सियासी इलेक्शन के हवाले से वफाक की हुकूमत का क्या? एक मैं बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा कि सियासी तौर पे, निज़ामी तौर पे हमारी एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है। कुछ हमारी जो प्रायोरिटी तरजीहात है उसमें ज़रा ऊपर होती है, कुछ एमकेएम की तरजीहात ऊपर होती है, लेकिन वो जो बड़ा मशहूर ज़माना स्टेटमेंट है ना, 1 पेज, वो आप समझ लें इन सब चीज़ों में 1 पेज पे। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी आपने फरमाया कि एमकेएम और पीटीआई हुकूमत में है, तो अच्छा या बुरा हो दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो आजकल तेल भी कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल वगैरह की, चीनी की भी और बिजली वगैरह की भी, तो इसमें एमकेएम भी जिम्मेदार होगी, दोनों ही जिम्मेदार हैं। सर जिस वक्त हम लास्ट
पिछली दफ़ा यहाँ पर आए थे हैदराबाद, तकरीबन 1 साल पहले की बात है, और उस वक्त महंगाई अरूज के ऊपर थी। तो यहाँ पर हमारे साथ खड़े होके जो नुमाइंदे थे एमक्यूएम के, उन्होंने कहा कि ये महंगाई जो है इसके ऊपर हमें काबू पाने की ज़रूरत है। तो जो बात आवाम की हक में है उन्होंने सबके सामने की थी। आपको मैं बिल्कुल सादा सी चीज़ बता दूँ, तब्दीली कितनी आई है। उस वक्त जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज से 1 साल पहले, जो लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में, इसको बोलूँ तो उर्दू का आसान रखना जी बड़ा मुश्किल नाम है। आसान अल्फाज में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की लोगों की चीज़ें, उस वक्त अफराद दर था 20% से ज़्यादा। कल पिछले हफ्ते का जो आया है रिजल्ट, उसमें 5.77% के ऊपर है, तो 1/3 से भी कम हो गया। बहुत बेहतरी हुई है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी है। 12 साल में जितनी किसी एक महीने के अंदर इजाफा नहीं हुआ था वो हुआ है। दिसंबर में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है। 45% गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है, तो मैशत भी उठ रही है। इंशाल्लाह ताला और बेहतरी होगी। सर लेकिन ये आखिरी सवाल, बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन चीनी तो वही सर 100 रुपये किलो हो गई है, और दूसरा ऑयल देख लें, और सब चीज़ें बढ़ रही हैं। अब पेट्रोल अभी बढ़े, अब देखना मैं हर चीज़ फिर बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दिन आपके पास आके तफसील से इस पे भी, महंगाई पे मैं बात कर लेता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2008 और 2009 में 10 साल 11 साल पहले की बात करूँ, ये चीज़ों की जिन्होंने देखिए आपसे बात की, वो आज से 20 से ज़्यादा कीमत थी। कीमतें ऊपर नीचे जाती, मजमूई तौर पर मैंने आपको बताया, सब चीनी, आटा वाला ये सब शामिल है उसके अंदर। मैं जिसकी बात कर रहा था सिर्फ 5.77% अपराध रह गया SBI।